हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। तो आप लोगों ने अभी तक बिल्कुल अपना टारगेट डिसाइड कर लिया है और हम लोगों ने इसी बेसिस पर अपना टारगेट डिसाइड करने के बाद फर्स्ट लेक्चर मोशन का बिल्कुल स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, एंड ये मोशन हम लोग स्टार्टिंग में क्यों पढ़ते हैं 9th क्लास में, ये तो डेफिनेटली आप लोगों को पता चल गया होगा, बिकॉज फिजिक्स स्टार्ट होती है मोशन से, राइट। कोई भी चीज अगर मूव करती है तो वहां से फिजिक्स स्टार्ट होती है। तो हाउ इट इज मूविंग, किस तरीके से पोजीशन डिस्क्राइब करो, किस तरीके से डिस्टेंस बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ, टाइप्स ऑफ मोशन बताओ। तो ये थोड़ी बहुत चीजें हम लोगों ने सीख ली थी। तो इसी सीरीज में लेक्चर नंबर 2 आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एंड डेफिनेटली वी गो फॉर योर स्कूल एग्जामिनेशंस एंड द ओलंपियाड्स लेवल एजुकेशन, राइट, and this is all for free for you, right? And in this whole scenario you can see the team. This team is definitely helping you in achieving your goals and targets and really making you prepare for the examinations, right? If you want study material and DPP, you can definitely access them through our Telegram channel, right? And your class is 9th, right? So your code will be TTB009. Okay, that will be your code. All you have to do is you have to go on the Telegram app, you have to write this code in the search box, and then the channel will appear. All right, class 9 channel will appear, and then you can join it and you can access the DPPs and study material there, right? And this is important, you can definitely get to that, right? And so the next important thing I really wanted to tell you, because we have prepared some packages or some beneficiary things for the people who really want to study hard and want to achieve the rank they have targeted. So this is the important thing, that you must be needing some study material which is very much focused on that examinations, for that examination, right? And the DPPs, extra DPPs, the test papers, how to handle the test papers, or what is the level of questions in that specific test papers. All such things will be given to you by the packages we have prepared. All you need to do is to go on website. Which one? www.talkingtextbooks.in. You have to go on this website to see all the packages. You can see such type of packages there on the website. Now see, this is just an example. This is, you can see this is class 6 packages, but just take it as an example. You have to go on the website, and then you will be seeing such type of definitely packages, right? And these are the features included in this package only. Okay? You can definitely see foundation and Olympiad is written over there. That means it will covering the foundation. That means it means making your concepts, your all living formulas and basic information strong, right? And you will be getting what? Comprehensive study material, recorded and live classes. That is definitely must. If you needed to go back on something, on a topic which is very much, you can say, weak for you, you can go for the recorded one, and definitely you can see the live ones, right? Homework submission is important feature. Why it is so important? Because definitely बच्चे जो होते हैं ना, वो homework नहीं करते, they do not complete their homework, they always lack their homework. So the thing is कि to motivate them to do the homework, to really make them working through the process to get the aim, to achieve the aim. So we are including this feature, homework submission. That means you are submitting the homework given by us on the Google Classrooms, right? Now see, bi-weekly quizzes is another one important feature. You will be getting knowledge, right, through the videos lectures. But how to check yourself that you have already given the knowledge, or you have achieved something, और कौन सा knowledge आपको कम है या फिर आप किस topic में weak है? How to know that? You have to take the bi-weekly quizzes there, and then you will be seeing yourself कि भाई हम कहाँ पे weak हैं, कौन सा topic weak है, कौन सा topic नहीं है, कौन सा strong है. ये सब चीज़ें आपको bi-weekly quizzes से clear हो जाएंगी, right? Periodic test papers is important, because periodic test papers आपको बताएंगे कि भाई आप जिस कंपटीशन की बात करते हैं, आप जिस स्कूल एग्जामिनेशन की बात करते हैं, वहां पर किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके का लेवल आता है क्वेश्चंस का, एंड ऑल सच थिंग्स आपको पता चलेंगे वहां पे. ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट. ऑल सच फीचर्स विल डेफिनेटली हेल्प यू अचीविंग योर टारगेट. सो आई थिंक यू शुड गो फॉर इट, राइट? एंड नाउ you, when you click on the buy now, you will be forwarded on a page. Then you will be definitely. So when you click on buy now, you will be forwarded on the price details page. You can see here the price written is 9,000. All right, but if you write here CY
LIVE. If you write this code CY live, and then you will be accessing the 30% discount, right? 30% discount will be given to you. Look, 2,700 will be deducted from the 9,000. Now the package becomes only of 6,300. This is beneficial for you, right? You are getting that much of vast information, that much of vast knowledge and a proper guidance just in 6,300. So I think you should not definitely waste your time. Just go for it. You have to click on buy package, then you will be forwarded on all the options you can choose to pray, right? To just do it, right? Now see, you can definitely contact us by this number. You can call on this number if you have any query regarding the packages we prepared for you, or regarding which package you should choose or not. You can definitely call on this number, right? And the next important thing is, if you are aware that you have attained much knowledge according to you, but you want to test yourself, then you can always go for the test series, which is also available on this website. And even on those test series, you can definitely write this code CY live on that package, on that test series, and definitely you will be getting 30% discount on the test series too, right? So this was the important thing I wanted to tell you, because why this is important, because definitely this thing will definitely help you in achieving your target. So I think it's important for you all, right? And now let's move on. तो आप अभी क्या करने वाले हैं? You will be writing, you will be just taking out your books, right? And promise yourself what you have to promise yourself, that you will be watching the whole lecture, you will be preparing notes, complete proper notes, right? And then you will be revising it. You know what, revision is important. Even if you skip classes, you should revise it. Why you should? Because revision is the key. If you revise it, your brain gets it more, set it more into the very much thick level. जैसे आप लोग कोई भी, जैसे हम लोग कहते हैं कि हम लोगों ने let's say you can say कि भाई हम रेत पर, जो सैंड बीच होता है, रेत पर अगर हम कोई लाइन खींचते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग सम स्टिक, अपने लाइन खींची, तो वो जब पानी आता है तो इट गेट्स वॉश्ड, वो एक ही बार में वॉश्ड हो जाती है, वो लाइन वहां से मिट जाती है, राइट? बट इफ यू ड्रॉ अ लाइन ऑन अ स्टोन, समझ रहे हैं आप? तो अगर आप स्टोन पे कोई लाइन, उसको बहुत ही मेहनत लगेगी आपको उसको खींचने के लिए, उस लाइन को ड्रॉ करने के लिए, लेकिन वो इजीली रब नहीं होगी. एंड दैट्स व्हाट वी हैव टू डू. आपको क्या करना है? आपको रेत पर खींचने वाली जो लाइन है उसको नहीं करना है, आपको बार बार मेहनत से पत्थर पे जो आपने लाइन बनाते हैं हम लोग जैसे, तो उस तरीके से हमको बार बार रिवीजन करके हमारे दिमाग में जो नॉलेज है उसको बिल्कुल सेट करके हमको दिमाग में रखना है, ताकि वो कभी भी फॉरगेट ना हो, ठीक है? सो दैट्स वाई सिर्फ इसी पर्पस के लिए रिवीजन इंपॉर्टेंट होता है. वरना एक बार में याद करने से थोड़ी देर के लिए तो आपको समझ में आ जाएगा, बट आफ्टर सम टाइम, आफ्टर वन डे, यू विल फॉरगेटिंग ऑल द थिंग्स. क्या फॉर्मूला पढ़ा था, क्या चीज डिस्कस की थी, क्या एग्जाम्पल्स दिए थे, क्या डेफिनेशंस थी, आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा. सो रिवीजन इज अ मस्ट. सो यू शुड गो फॉर इट. रिवाइज एवरी सिंगल टाइम, राइट? रिवाइज एवरी सिंगल टाइम. जब जब आप लेक्चर अटेंड करते हैं, जब जब अपने नोट प्रिपेयर करते हैं, गो फॉर इट रिविजन एवरी सिंगल डे. सेट अ स्पेसिफिक टाइम फॉर द रिविजन. लेट्स से 1 hour in the morning is set for revision only, and do all subjects revision. Either it's maths, either it's bio, either it's chemistry, all subjects you can prepare in that 1 hour. That will be so much beneficial for you in the long term, right? And definitely 9th class is important, because we are preparing towards the board examinations, right? So this is important, and that's why I always told you to take a promise to yourself. Now let's start the lecture, that is lecture 2, and that is basics of motion. हम लोगों ने अब तक टाइप्स ऑफ मोशन को स्टडी कर लिया है, राइट? हम लोगों ने देख लिया है कि भाई जो फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोगों जो मैकेनिक्स हम लोगों ने देखा है, जो ब्रांच हम लोग स्टडी कर रहे हैं, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ पे कौन सा ब्रांच हम स्टडी कर रहे हैं, क्यों स्टडी करते हैं, कब कौन सी ब्रांच में क्या स्टडी करते हैं. वी हैव डील विद ऑल सच थिंग्स, राइट? बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि हम लोग उसको अब जो आगे पढ़ रहे हैं, राइट? नाम, सब्जेक्ट का नाम पढ़ने से या सब्जेक्ट का नाम समझने से इज नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन हमको, ठीक है, नॉलेज के लिए हम लोग ले सकते हैं, बट व्हाट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि भाई आपको एक्चुअली में पता होना चाहिए कि उस सब्जेक्ट में चल क्या रहा है, राइट? आपने समझ लिया फिजिक्स क्या होता है. फिजिक्स होता है कि भाई आसपास के एनवायरनमेंट को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, सो दैट इज फिजिक्स, राइट? आसपास के जितना भी फिजिकल वर्ल्ड है उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसका रीजन कर रहे हैं, व्हाई इट इज हैपनिंग, और आगे क्या क्या हो सकता है अकॉर्डिंग टू आवर कैलकुलेशंस. तो वी आर डूइंग सच थिंग्स. बट
सिर्फ अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स टू, राइट। मोशन क्या है, रेस्ट क्या है, कितने टाइप्स ऑफ मोशन है, किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, क्या स्पीड है, क्या डिस्टेंस है। जब हम इन बातों को करने लगते हैं तब जाके हम लोग एक्चुअली में फिजिक्स को स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है। सिर्फ फिजिक्स का मतलब समझ लेना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट स्टडिंग फिजिक्स इज रियली इंपॉर्टेंट। सो लेट्स गो फॉर इट। हम लोग बेसिक्स ऑफ मोशन का चैप्टर 2 मतलब लेक्चर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, एंड इसमें हम लोग आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट थिंग्स, वो इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपके लिए डेफिनेटली आपके चैप्टर को कंटिन्यू करने के लिए ज़रूरी है। जैसे जब कभी भी हम किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को बताते हैं तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। फिर हम सीखेंगे 1D मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन क्या होता है, ठीक है। एंड देन वी विल बी डिस्कसिंग ऑल द इंपॉर्टेंट फीचर्स लाइक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। फिर हम ये देखेंगे कि भाई हम कोई क्वेश्चन मैं आपको डेफिनेटली प्रैक्टिस करवाऊंगी, ठीक है। उसके बाद हम आगे जाएंगे, राइट। एंड डेफिनेटली हम उन चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे जो कि मोशन को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी एक्चुअल में हम मोशन पर आए नहीं हैं, हम अभी सिर्फ उसके बेसिक्स को ही समझ रहे हैं कि भाई डिस्टेंस क्या होता है, पोजीशन क्या होती है, कैसे चेंज होते हैं, हम लोग कैसे पता करें कि हाउ टू मतलब कितना पोजीशन चेंज हुआ है। तो अभी हम सिर्फ उसी का बेसिक को स्टडी कर रहे हैं, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू द एसेंशियल्स थिंग्स जो कि हमको जाननी होती है जब हम किसी भी बॉडी के मोशन को डिस्क्राइब करना चाहते हैं, ठीक है। वो एसेंशियल थिंग्स क्या है, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नंबर 1 दैट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होती है, लाइक सी दिस इज अ पेन, दिस इज एन ऑब्जेक्ट डेफिनेटली, बट क्या ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट नजर आ रही है आपको। पॉइंट ऑब्जेक्ट डेफिनेट सी बात है, आप बोल सकते हैं पॉइंट जिसका बिल्कुल पॉइंट जैसी हो वो पॉइंट ऑब्जेक्ट होती है, बट क्या ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, नहीं, बिल्कुल नहीं है, आप बोलेंगे नहीं है। लेकिन मैं इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकती हूँ, पर किस कंडीशन में इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मानूंगी ये इंपॉर्टेंट है। देखेंगे व्हेन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मच लेस इन कंपैरिजन टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट then the object is considered as a point object. That means कि भाई जैसे यही पेन है और मैंने इसे बहुत जोर से फेंका, ठीक है, ये बहुत दूर जाएगा, तो ये अपने साइज के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा डिस्टेंस अगर ट्रेवल करता है तो दैट मीन्स कि भाई ये मैं एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करूंगी। इसका बहुत अच्छे एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हैं अर्थ, ठीक है, अर्थ का ले सकते हैं, बिकॉज आप डेफिनेटली देख रहे हैं भाई अर्थ तो इतनी छोटी है नहीं, पॉइंट ऑब्जेक्ट तो कंसीडर नहीं करेंगे, राइट। लेकिन हम उसको कंसीडर तब करेंगे जब वो सन के चारों तरफ का डिस्टेंस कंप्लीट करेगी, एंड दैट इज वेरी मच बिग डिस्टेंस, राइट। वो एक बहुत बड़ा डिस्टेंस है जब वो सन के करती है, तो उसका जो एक सर्कल का जो डिस्टेंस है दैट इज वेरी मच बिग कंपेयर टू इट्स साइज, ठीक है। अगर हम बड़े लेवल की बात करें तब हम ऐसा कह सकते हैं, तो उसका जो साइज है अर्थ का और उसका जो पाथ का डिस्टेंस है दैट इज वेरी मच बिग अकॉर्डिंग टू द साइज। तो उस केस में हम अर्थ को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बट एक्चुअली में आप जानते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट है नहीं, पर हम कंसीडर करेंगे अगर हम उसके मोशन को स्टडी आउट करना चाहते हैं। तो इसी केस में जैसे लेट्स से कि एक कार है, ठीक है, और वो कार ट्रैवलिंग, उसका मेन एम यही है कि बस वो ट्रैवल ही कर रही है एक सिटी से दूसरे सिटी से तीसरी सिटी से। नाउ लेट्स से कि भाई वो ट्रैवल करते करते बहुत दूर जा रही है, लाइक थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स वो कवर अप करती है, तो उस केस में क्या होगा, हम उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे, बिकॉज उसका खुद का जो लेंथ है, उसका खुद का जो साइज है वो बहुत छोटा है इन कंपैरिजन टू द साइज ऑफ द लेंथ शी कवर्ड और इट कवर्ड, राइट। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जब कभी भी आप स्टडी कर रहे हैं किसी का मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन अगर आप स्टडी कर रहे हैं और वो जितना मूव कर रही है उसके कंपैरिजन में उसका साइज तो नेग्लिजिबल मान लीजिए, तब हम उस ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि भाई आपको ये पता करना है दैट द ऑब्जेक्ट का साइज एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इज कितना है कंपैरिजन में, ठीक है। अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा हुआ कंसीडर इट अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, अगर डिस्टेंस कम हुआ तो हम नहीं करेंगे। लेट्स से कार है और वो कहाँ जा रही है, बस 1 किलोमीटर दूर जो मार्केट है बस वहीं तक जा रही है, तब हम क्या करेंगे, तब हम इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग को इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखनी है कि अगर उस ऑब्जेक्ट का साइज
उसका कवर्ड डिस्टेंस से बहुत कम होता है तो हम उसे बोलेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इट इज एन ऑब्जेक्ट whose dimensions are ignored or neglected while considering its motion। जब हम उसके मोशन को कंसीडर कर रहे होते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, उसके डायमेंशन को नेग्लिजिबल मान लेते हैं, मतलब हम नहीं मानते उसके पास कोई हाइट है, कोई लेंथ है, कोई ब्रेथ है, डायमेंशंस को नेग्लेक्ट कर दिया, पॉइंट बना दिया उसको, ठीक है। तो डेफिनेटली पॉइंट बना दिया तो सब नेग्लेक्ट हो जाएंगे उसके डायमेंशंस, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता है। हम सिर्फ कंसीडर करते हैं, हम सिर्फ मानते हैं कि लेट्स से थोड़ी देर के लिए वी शुड जस्ट स्टॉप इट, ठीक है, हम इसको स्टॉप कर देते हैं, कुछ भी नहीं है अभी इसका पॉइंट साइज, इसका ना कोई लेंथ है, इसका ना कोई ब्रेथ है, इसका ना कोई हाइट है, ठीक है। और हम तब उसका स्टडी करते हैं मोशन, मोशन स्टडी करने के बाद हम उसका कंसीडर कर लेते हैं वापस से, जो भी उसका लेंथ हाइट ब्रेथ है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको रिमेंबर करनी है, इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्या मतलब है, जैसे आप लोग बोलते हैं ना, लेट्स से आपकी मम्मी ने आपको काम दिया कि आप शॉप से लेकर आ जाओ कुछ भी, लेट्स से आपको मंगवा दिया, एक कॉपी मंगवा ली है, ठीक है, तो आप गए शॉप तक गए, लेकिन लेट्स से कि भाई आपके घर के ईस्ट में भी एक शॉप है और आपके घर के वेस्ट में भी एक शॉप है, ठीक है। तो आप मम्मी को बोलोगे कि मम्मी कौन सी शॉप से आना है, तो मम्मी बोलेगी लेफ्ट में, ठीक है। तो अब तुम ये लेफ्ट कहाँ से डिसाइड करोगे, क्या तुम अपने स्कूल का लेफ्ट डिसाइड करोगे, हाँ, या फिर तुम कहीं और उस शॉप का लेफ्ट डिसाइड करोगे, नहीं ना, तुम लेफ्ट डिसाइड करोगे कहाँ से, तुम्हारे घर से। दैट मीन्स तुमको कहाँ जाना है, लेफ्ट में जाना है, लेकिन किसके लेफ्ट में, तुम्हारे घर से तुम्हें लेफ्ट में जाना है, राइट। तो तुम क्या कर रहे हो, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्रिएट कर रहे हो, खुद से रेफरेंस क्रिएट कर रहे हो कि इस ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में मुझे लेफ्ट में जाना है या फिर इस ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में मुझे राइट में जाना है, ठीक है। तब आप क्या करते हैं, रेफरेंस को लगाते हैं, रेफरेंस को क्रिएट करते हैं, ठीक है। जैसे हम ऑब्जेक्ट्स का अगर हम मोशन कंसीडर करें तो देखेंगे, आप इस तरीके से बोल सकते हैं, लेट्स से दिस इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये एक लेट्स से एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है और यहां से कोई दूसरी ऑब्जेक्ट इसके बगल से निकल के यहां चली गई, ठीक है, लेट्स से बी पर आ गई, अब वो बी पर आ गई है एंड यहाँ इन दोनों के बीच में मान लीजिए डी डिस्टेंस है, ठीक है, डी डिस्टेंस है ए और बी के बीच में। तो जो बी पर पहुंची वो बोलेगी कि मैं ए से कितने दूर हूं, डी डिस्टेंस दूर हूं, तो वो डिस्टेंस कहां से नाप रही है, ए से नाप रही है। दैट मीन्स उसका जो रेफरेंस है वो कौन है, ए है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि हम डिस्टेंस तो नाप रहे हैं पर कहां से नाप रहे हैं, स्टार्टिंग पोजीशन क्या है, क्या चीज है जिसके कंपैरिजन में हम लोग देख रहे हैं कि मैं उससे इतनी दूर खड़ी हूं। जब कभी भी हम पोजीशन बता रहे होते हैं, जैसे लेट्स से आप पीटी के लिए ग्राउंड में खड़े हैं, ठीक है, सब लाइन बाय लाइन सब पोजीशंस में खड़े हुए हैं, ठीक है, एंड आप बोलते हैं कि भाई थर्ड रो में फिफ्थ बच्चा आए, तो दैट इज अ पोजीशन, राइट। आप स्टार्टिंग से ले रहे हो कि भाई दीज आर द रोज, दिस इज द थर्ड रो, 1 2 3, किसके कंपैरिजन में, स्टार्टिंग में आपने जो नंबर लिया है 1 2 3 के कंपैरिजन में दिस इज द थर्ड रो, फिर उसमें कोई और बच्चा। तो आप जब इस तरीके से डिसाइड करते हो कि भाई कौन चीज कहाँ है, तो हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। जैसे कभी भी कोई भी चीज घर में खो जाती है, लेट्स से आपका पेन खो गया है, ठीक है, एंड यू आर फाइंडिंग इट ऑल वेयर इन द रूम, तो मम्मी बोलेगी ड्रॉर के लेफ्ट साइड में देखो, तो वो ड्रॉर क्या हो गया, वो ड्रॉर हो गया है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब उस ड्रॉर के लेफ्ट साइड में आपको आपका पेन मिल जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे आप कोई भी चीज का पोजीशन अगर देख रहे हो तो आप कंसीडर कर रहे हो कि वो पोजीशन किसी एक ऑब्जेक्ट से कहाँ है, कितनी दूर है, दैट्स यू आर डिसाइडिंग, ठीक है। तो हम इसमें क्या बोलते हैं, व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, a fixed point or a fixed object with respect to which the given body changes its position is known as frame point, reference point, right, or the origin। मतलब एक ऐसी फिक्स चीज, ठीक है, जिसके कंपैरिजन में आप बोलते हो कि उससे दूसरी ऑब्जेक्ट कितना दूर है, कितना पोजीशन पे है, कौन सी डायरेक्शन में है, सो दैट इज द थिंग, एंड उसी को हम क्या बोल देते हैं, हम उसको रेफरेंस बोल देते हैं, ठीक है। सेकेंड चीज, टू लोकेट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट वी नीड अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जब कभी भी हम किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन बता रहे होते हैं कि भाई कहाँ है वो ऑब्जेक्ट एक्चुअली में, तो हम क्या करते हैं, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कंसीडर करते हैं। नाउ व्हाट इट इज, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, आप लोगों ने एक्स और वाई तो देखा है ना, एक्स वाई प्लेन तो देखा है, ग्राफ तो देखा होगा, कार्टेशियन प्लेन तो देखा होगा, राइट। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, दिस इज एक्स डायरेक्शन, ठीक है, लेट्स से दिस इज द एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो आप ग्राफ में क्या बोलते हैं कि भाई ये वाई हो गई, यही तो बोलते हैं, ऊपर जाएगी तो वाई होगी, तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया, एक एक्स एक वाई, तो वाई जा रही है। बट जब हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहे हैं तो हमें एक और
एक एक्सिस चाहिए जो कि हाइट को बताती है, एंड दैट एक्सिस इज नोन एज व्हाट, दी जेड एक्सिस। ठीक है, तो x पता चल गया है ना, जो कि लेट्स से राइट एंड लेफ्ट में जा रही है, y पता चल गया जो कि अप डाउन में जा रही है। बट इस प्लेन से बाहर निकलेंगे अगर, लेट्स से मेरा जो लेफ्ट हैंड है, दिस इज पॉइंटिंग यू इन दी पॉजिटिव x एंड माई राइट हैंड इज पॉइंटिंग इन दी नेगेटिव x, राइट। मेरा जो हेड है वो y की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, पॉजिटिव y, और मेरे जो लेग्स है वो पॉइंट आउट कर रहे हैं नेगेटिव y, राइट। तो ये तो एक प्लेन हो गया, ठीक है, मैं सिर्फ इस प्लेन की बात कर रही हूँ, लेफ्ट राइट अप डाउन, दैट्स इट। बट व्हाट इफ आई वॉक फॉरवर्ड, उसके लिए कौन सा होगा, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, z को ले रहे हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स हम तीन चीजों को कवर अप करेंगे, पूरा जो स्पेस है ना, पूरा एक स्पेस हम x, y और z से कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पोजीशन को बताने के लिए कि भाई कोई बॉडी इतना दूर है, ठीक है, इतने हाइट पे है, इतनी दूर रखी हुई है ना, तो उसका जो पोजीशन आप बताएंगे तो हम चूज करते हैं ये तीन एक्सिस, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, लेट्स से कोई पॉइंट यहां पे है, अब ये जो पॉइंट यहां पे है ना, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे x, y, z, और यही उसका पोजीशन होगा। कैसे, यहाँ पे वो बताएगा कि इस ओरिजिन से कितना x में है, ये जो x है वो बताएगा कि भाई ओरिजिन से कितना दूर है, राइट। ये जो पॉइंट है वो y डायरेक्शन में बताएगा, ये जो y लिखा हुआ है वो y डायरेक्शन बताएगा कि y डायरेक्शन में कितना दूर है ओरिजिन से। z आपको बताएगा z डायरेक्शन में, यानी कि फॉरवर्ड बैकवर्ड वाली जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट कितना दूर है ओरिजिन से। तो आपको स्पेस में x, y, z से पता चल सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन, ठीक है। जब आप इस चीज को समझेंगे कि भाई हम किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन x, y, z तीनों से बता सकते हैं, ठीक है, तो इसको ही हम क्या बोल देते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि भाई हम इसके ओरिजिन से, इसका स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज कॉल्ड ओरिजिन, है ना, तो ओरिजिन से हम कितना दूर जा रहे हैं, कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, x में जा रहे हैं, y में जा रहे हैं, z में जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सभी चीजें हमको कैसे पता चलेगी, हमको सिर्फ तब पता चलेगी जब हमारे पास ऐसा कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो, है ना। और ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने क्या किया है, एक जगह फिक्स कर दिया है, तो उससे दूर जा रहे हैं ना, तो उससे दूर जाएंगे तो हमारा पोजीशन चेंज होगा, x, y, z का वैल्यूज चेंज होगा, ठीक है। तो उस वक्त हम क्या बोल सकते हैं कि भाई ये पोजीशन है, और अगर ये बदला तो मतलब ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है। तो ये चीज हमको पता चल जाती है। नाउ सी, चूज 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइक दिस, ठीक है। ये जो मेरी फिंगर है, दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस एंड दिस, ठीक है। ये जो मेरा थंब है, दिस इज परपेंडिकुलर टू बोथ द थिंग्स, तो दिस इज कॉल्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर। हर एक लाइन बाकी दोनों के 90 डिग्री पर है, ठीक है। नाउ लेट्स से कि भाई ये अगर x डायरेक्शन में है, ये अगर y डायरेक्शन में है, तो दिस विल पॉइंट आउट द आउटवर्ड z डायरेक्शन, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, दिस इज कॉल्ड द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। दिस इज द ओरिजिन, जहां पे तीनों मिलते हैं, दैट इज द ओरिजिन वन, ठीक है। अब जो भी पोजीशन चेंज होगा वो इन तीनों के बेसिस पर होगा। x बदलेगा तो क्या होगा, लेट्स से कि भाई x बदल रहा है सिर्फ, तो मतलब ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रही है, ठीक है। x बदल रहा है तो ऑब्जेक्ट मूव कर रही है। अगर लेट्स से y बदलता है तो ऑब्जेक्ट ऊपर या नीचे जाएगी, है ना। लेट्स से z बदलता है तो ऑब्जेक्ट आगे या पीछे जाएगी। सो दिस इज द थिंग कि जब इन तीनों में से कोई ना कोई चेंज होगा तो दैट मीन्स पोजीशन चेंज हो रहा है, और पोजीशन चेंज होने का मतलब बॉडी इज इन मोशन, राइट। तो देखते हैं, चूज 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, तो हमने चूज कर ली, राइट, एंड नेम दैम x, y, z, हमने x, y, z नाम दे दिया उसको, ठीक है, x, y, z। तो ये हमने एक x, y, z एज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज कर लिया। नाउ द कोऑर्डिनेट्स x, y, z, कोऑर्डिनेट्स मतलब पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, एड्रेस, लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट यू कैन से, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स का मतलब हो गया लोकेशन, कि भाई पार्टिकल है कहाँ, ठीक है। एंड देन स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू दैट फ्रेम, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका पोजीशन, कि ये ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन मैंने एक्स वाई जेड से बताई है, ठीक है। तो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्रेस द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। अब हम क्या करते हैं, पहले तो तुम फटाफट से पॉइंट्स नोट कर लो, दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।
चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। और ठीक है, तो आप सभी नोट कर लिया। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, हम लोग स्टडी करते हैं मोशन इन 1D कि भाई 1D मोशन क्या होता है। 1D मोशन का मतलब वैसे तो कई बच्चे समझते होंगे 1D डायमेंशन, अभी हमने XYZ 3 पढ़ा ना, तो वो 3D है, ठीक है। X 1D, Y और X मिल जाए तो 2D, अगर Y, X और Z भी मिल जाए तो 3D। वो कैसे स्टडी करते हैं, लेट्स सी। हम मोशन इन 1D की बात कर रहे हैं। मोशन इन 1D का मतलब क्या होता है, इफ ओनली वन ऑफ द 3 कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाइंग द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन इट्स मोशन इज कॉल्ड 1D। इसका मतलब वो जो 3 थे X, Y, Z, उसमें से अगर सिर्फ और सिर्फ X चेंज हो, ठीक है, लेट्स से सिर्फ X चेंज हो, Y, Z चेंज नहीं हो रहा, तो दैट वुड बी कि यहाँ पे 1D मोशन है। दैट मीन सिर्फ एक डायमेंशन चेंज हो रही है, ठीक है। लेट्स से यू आर मूविंग इन जस्ट राइट और इन जस्ट लेफ्ट। अगर आप सिर्फ इन दोनों डायरेक्शन में ही जाते हैं ना, लेफ्ट राइट ही मूव करते हैं, लेट्स से आप अपने घर से चले, शॉप तक गए, शॉप से वापस अपने घर को आए, तो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर मूविंग लेफ्ट और राइट इधर, ठीक है। तो लेट्स से आप सिर्फ ऐसे ही जा रहे हैं। अगर आप सिर्फ ऐसे ही मूव करते हैं तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ 1D मोशन। और इसमें कौन सा आता है, हमेशा लीनियर मोशन आता है, ठीक है। देखेंगे इन सच अ केस द ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा करती है तो दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज इन 1D, ठीक है, 1 डायमेंशनल मोशन कर रही है, ठीक है। वी विल से दैट दिस मोशन इज ऑल्सो नोन एज रेक्टिलिनियर और लीनियर मोशन, ठीक है, बिकॉज वी आर गोइंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। या तो हम आगे जाएंगे स्ट्रेट लाइन पे या तो पीछे जाएंगे स्ट्रेट लाइन पे। आगे पीछे जाना मतलब सिर्फ X चेंज हो रहा है, आइदर आई एम गोइंग इन द लेफ्ट और द राइट। तो यहाँ पे हम सिर्फ 1D की बात कर रहे हैं, इसका मतलब सिर्फ स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहे हैं, आगे पीछे, दैट्स इट, ठीक है। हम ऊपर नीचे की बात नहीं कर रहे, है ना। गुड। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल कौन है, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो पत्थर जो गिर रहा था बेचारा, वो, ये इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ एक ही स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दैट इज ओनली गोइंग डाउनवर्ड, राइट। तो ये 1D मोशन कर रहा है, क्या ये इधर उधर मूव कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये पत्थर क्या कर रहा है, एक ही डायमेंशन में स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है। वो स्ट्रेट लाइन कहीं भी हो सकती है, सही बात है, वो स्ट्रेट लाइन कहीं भी हो सकती है, राइट। तो ये जो बॉडी है वो मूव कर रही है इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन। अभी इसका भी और अच्छा एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। लेट्स से दिस इज योर हाउस, ठीक है। मैं एक छोटा सा घर बना देती हूँ, हमें बचपन में ऐसे ही घर बनाना सिखाया था, ठीक है। तो लेट्स से दिस इज योर हाउस, हमने इसको H नाम दे दिया है। एंड यू वांट टू गो ऑन दी स्कूल, और तुम्हारा स्कूल है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट रोड पर जाके, है ना, स्ट्रेट रोड पे जाके तुम्हारा यहाँ पे स्कूल आता है। लेट्स से दिस इज योर स्कूल, है ना। स्कूल ऐसे हमने बना दिया थोड़ा क्रिएटिविटी के लिए, ठीक है। नाउ दिस इज योर स्कूल। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है। यू आर मूविंग इन जस्ट दिस डायरेक्शन, सीधे सीधे चले गए, स्कूल तक पहुंच गए, स्कूल से वापस निकले, सीधे सीधे घर तक पहुंच गए। तो आपने कौन सा मोशन किया, आपने किया है 1D मोशन, दैट मीन्स आप सिर्फ आगे पीछे गए हैं, ठीक है। आपने सिर्फ 1 डायमेंशन चेंज किया है, आप ऊपर नहीं गए हैं, ठीक है। तो आपने Y तो लिया ही नहीं है, आप आगे नहीं आए हैं, मतलब इसके पोजीशन के इधर नहीं आए हैं, तो आपने Z भी नहीं लिया है, राइट। सो आपने क्या किया है, सिर्फ X को ही कवर अप किया है, तो दैट मीन्स आपने सिर्फ 1D मोशन ही किया है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मोशन, लीनियर मोशन इज 1D मोशन, ठीक है। तो आप फटाफट से इसको नोट करो। ठीक है, अब आपको समझ में आया कि 1D मोशन क्या होता है, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। बट व्हाट इज 2D, 2D का मतलब क्या होता है, देखेंगे। 2D का मतलब होता है प्लेन। इसका मतलब आप एक साथ 2 डायमेंशन में ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्लेन हुआ, ठीक है। हम लोग एक प्लेन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। इसके लिए आप क्या बोलेंगे कि जब
only 2 of the 3 coordinates specifying the position of object changes with respect to time, then its motion is called टू डायमेंशनल मोशन. ठीक है, इसका मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है लेकिन वो एक्स और वाई मतलब उसका दोनों पोजीशंस एक साथ चेंज हो रहा है तो दैट वुड बी व्हाट 2D. इसका बहुत अच्छा एग्जांपल जब आप प्लेग्राउंड में खेलते हैं. ठीक है, तो प्लेग्राउंड में क्या होता है, प्लेग्राउंड का एक लेंथ होता है, बिल्कुल सही बात है, और प्लेग्राउंड का एक विड्थ भी होता है. तो आपको एक एरिया मिल जाता है मूव करने के लिए. ठीक है, आपको खेलने के लिए एक एरिया मिल जाता है एंड दैट इज कॉल्ड द प्लेन. जब आप उस पर खेल रहे होंगे यू आर वॉकिंग अलोंग अ प्लेन. लेट्स से कोई चींटी आपके पेपर आपकी कॉपी पे चढ़ जाए. ठीक है, और फिर वो आपके पूरे पेपर पे घूमती रहे इधर उधर इधर उधर उधर, तो वो क्या कर रही है, वो एक प्लेन पे मोशन कर रही है. उस आपका जो कॉपी का पेपर है वो एक्चुअली एज अ प्लेन बिहेव करेगा. क्यों? क्योंकि आपके कॉपी के 2 डायमेंशन. कैसे डायमेंशन है, एक तो लेंथ और एक ब्रेथ. तो दीज आर द 2 डायमेंशन. और उसके ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो इसका मतलब कि वो क्या कर रही है, 2D मोशन कर रही है. ठीक है, तो और भी बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स है. कैरम हम लोग जैसे देख रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जितनी भी छोटी छोटी इसके ऊपर जो इसको हम गोटी कहते हैं राइट. सो इसके ऊपर जितनी भी ये गोटियां मूव कर रही हैं, ठीक है, तो वो क्या कर रही हैं, वो इन प्लेन में मूव कर रही है, वो इस पूरे प्लेन पे मूव करेगी. दैट मीन्स इसका भी 2 डायमेंशंस हैं, एक तो लेंथ है एक तो ब्रेथ है. तो इट बिकम्स अ प्लेन और उस पर सारी की सारी जो ये गोटियां हैं वो मूव कर रही हैं राइट. नाउ सी, हम लोग जब भी 2 डायमेंशन की बात करेंगे तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट किसी भी प्लेन में मूव कर रही है. पर आप ऐसा नहीं कह सकते कि प्लेन सिर्फ जमीन ही होती है. लेट्स से आपने एक बॉल फेंकी. ठीक है, आपने क्या किया, अपने फ्रेंड के साथ कैच खेल रहे हैं राइट. तो आप क्या करेंगे, बॉल फेंकेंगे, आपका फ्रेंड कैच करेगा, फिर आपका फ्रेंड बॉल फेंकेगा, आप कैच करेंगे. तो इसमें जो बॉल है वो कैसे मूव कर रही है, बॉल आगे भी जा रही है, आपके फ्रेंड के पास भी जा रही है और ऊपर भी जा रही है. सही बात है. तो इसका मतलब वो प्लेन पे मूव कर रही है. और कैसे, बिल्कुल ऐसे राइट. तो ये जो लेट्स से कि भाई जैसे लेट्स से आप यहां खड़े हैं. ठीक है, दिस इज यू, और आपका जो फ्रेंड है वो यहां खड़ा है. ठीक है, दिस इज योर फ्रेंड, लेट्स से इट्स एफ. अब देखो यहां पर आपने बॉल फेंकी, बॉल जाएगी कुछ ऐसे और यहां पहुंचेगी, आपके फ्रेंड ने कैच कर ली. द थिंग इज कि ये जो बॉल थी ये आगे भी जा रही है और ऊपर भी जा रही है. समझ में आ रही है, आगे भी जा रही है और ऊपर भी जा रही है. तो इसका मतलब भाई ये 2 डायमेंशन कर रही है. क्यों? क्योंकि x भी चेंज हो रहा है और y भी चेंज हो रहा है. तो ये क्या कर रही है, 2 डायमेंशनल मोशन कर रही है. तो जब कभी भी, और प्लेन क्या हुआ, इसका प्लेन हुआ ये सीधा सीधा प्लेन. ठीक है, जिस उसमें वो मूव कर रही है दैट वुड बी द प्लेन राइट. तो आप ये लोग कह सकते हैं कि भाई जरूरी नहीं है कि जो प्लेन है वो सिर्फ कोई सरफेस हो, जैसे कॉपी का सरफेस हो गया तो सिर्फ वही प्लेन नहीं होता है. प्लेन ऐसा भी होता है जो कि दिखाई नहीं देता बट इट इज मूविंग इन अ प्लेन, क्योंकि वो अपना डायरेक्शन आगे पीछे चेंज नहीं कर रही है. ऑब्जेक्ट यहां से निकली और डायरेक्टली वहां पहुंची तो वो सीधे वहां जा रही है. प्लेन क्या हो गया, ये वाला प्लेन हो गया जिसमें वो मूव कर रही है राइट. तो आप यहां देख सकते हैं प्लेन इनविजिबल हो सकता है जैसे कि यहां पर है, बट ये जो मूव कर रही है इसके जो डायमेंशंस हैं वो कौन से चेंज हो रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे 2 डायमेंशंस चेंज हो रहे हैं जैसे कि x और y. ठीक है, तो आप यहाँ पे डेफिनेटली बोल सकते हैं दिस बॉल इज मूविंग इन अ प्लेन, दैट मीन्स इट इज शोइंग 2D मोशन राइट. 2 डायमेंशनल मोशन ये शो कर रही है. एंड डू यू नो व्हाट कि इसका नाम क्या है, इस मोशन का नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन. ये हम लोग आगे आने वाली क्लासेस में डेफिनेटली पढ़ेंगे. इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन. ठीक है, और इस मोशन के अंदर 2 एक साथ चलते हैं. लाइक x भी चेंज हो रहा है और y भी चेंज हो रहा है, तो 2 डायमेंशंस एक साथ मूव करते हैं राइट. सो दिस वुड बी कॉल्ड द प्रोजेक्टाइल मोशन. ये तो मैंने सिर्फ भी तुम्हें जनरल नॉलेज के लिए दे दिया, दैट यू शुड नो भाई कौन सा मोशन होता है. ठीक है, इट इज जैसे लीनियर मोशन होता है, 1D मोशन होता है, 2D मोशन होता है, वैसे ये प्रोजेक्टाइल मोशन होता है. ठीक है, इसको हम बोलते हैं. तो प्रोजेक्टाइल मोशन एक तरीके से 2D मोशन हुआ. ठीक है, तो हम लोग ऐसे डेफिनेटली बोल सकते हैं. अब आप फटाफट से इसको नोट कर लो ताकि हम 3D मोशन को कंसीडर करें पढ़ने के लिए. चलो अब हम 3D मोशन को स्टडी करते हैं. व्हाट इज 3D? अब 3D में हमने सिंपल बोल दिया कि भाई तीनों अगर पोजीशन चेंज हो जाए तो दैट वुड बी 3D राइट. तीनों कोऑर्डिनेट्स अगर चेंज हो जाए तो दैट वुड बी कॉल्ड व्हाट, द
थ्री डायमेंशनल मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट जस्ट लाइक। और ये 3D में क्या होता है, जब जब तीनों पोजीशन चेंज होते हैं ना, तब तब क्या होता है, हम स्पेस पे मूव कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ये जो बर्ड है, रैंडम मोशन है, अब लेट्स से बर्ड है, उड़ रही है, वो एक्स में भी उड़ सकती है, वाई में भी उड़ सकती है और जेड में भी उड़ सकती है, हो सकता है वो तीनों ही एक साथ मूव कर रही हो, राइट। तो बिल्कुल बिल्कुल हवा में कहीं पे भी कैसे भी मूव कर पा रहे हैं, तो दैट इज नोन एज व्हाट, द 3 डायमेंशनल, ठीक है। और इसके अंदर इन सच अ मोशन द ऑब्जेक्ट मूव्स इन स्पेस, हमेशा स्पेस में मूव करती है, बिकॉज तीनों चेंज हो रहे हैं ना, वो एक्स में भी मूव कर रही है, लेट्स से वो फॉरवर्ड भी जा रही है, वो ऊपर भी जा रही है और वो आगे भी जा रही है, यू कैन से दैट, राइट। तो डेफिनेटली आप ऐसा बोल सकते हैं कि तीनों जब पोजीशंस चेंज हो, जब तीनों एक्स वाई जेड चेंज हो, तो दैट वुड बी टेकन एज व्हाट दी 3D मोशन। इसका मतलब अगर तीनों चेंज हो रहे हैं, पोजीशन चेंज हो रही है एंड द बॉडी इज शोइंग द 3 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। तो डेफिनेटली आप ऐसा बोल सकते हैं कि भाई स्पेस में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करे तो दैट वुड बी इन द 3D मोशन, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इन तीनों तरीके के मोशन से आगे निकलते हैं, ठीक है। अब हम देख रहे हैं 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, क्योंकि देखो अगर कोई बॉडी मूव करेगी तो भाई डायरेक्शन तो चाहिए ही चाहिए, क्यों चाहिए, इधर मूव करेगी, उधर मूव करेगी, किधर मूव करेगी, पता करने के लिए डायरेक्शन चाहिए, राइट। तो देखो हम लोगों ने क्या किया, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज को हमने 2 टाइप्स में बांटा, ठीक है। वो टाइप्स कौन है, एक स्केलर, एक वेक्टर। जो स्केलर होते हैं उसके अंदर डायरेक्शन बिल्कुल भी नहीं होती, जो वेक्टर होते हैं उनके अंदर डायरेक्शन होती है, ठीक है। ये मैं तुमको बताती हूँ। नंबर 1 स्केलर्स में देखेंगे, द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली एंड नो डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। इनका बहुत अच्छा एग्जाम्पल कौन है, मास, ठीक है। मास कैसे, मास ऐसे कि भाई जब जब बॉडी मूव कर रही थी तो क्या हुआ था वहां पे, जब जब बॉडी मूव कर रही है तो वो एक डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, राइट। जब वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तो वो एक ही डायरेक्शन में अगर मूव करेगी तब तो हम बोलेंगे कि भाई डायरेक्शन तो है, भाई लेट्स से ईस्ट में मूव कर रही है, ईस्ट में 5 किलोमीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। तो ये अगर मैं बोलना चाहूंगी तो आई वुड बी टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड। तो इसका मतलब ये जो क्वांटिटी, जो रिप्रेजेंटेशन है, वो उसके अंदर क्या क्या चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो वो कहाँ चला जाएगा, वेक्टर्स में चला जाएगा। बट जो स्केलर्स होते हैं उनको समझाने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड ही काफी है। लेट्स से मास ऑफ अ बॉडी, ठीक है, जो मास होता है किसी भी बॉडी का, जो मास होता है, जब हम उनको बता रहे होते हैं दिस इज मास ऑफ मास, लेट्स से आपने बोले कि भाई टमाटर का मास 2 kg है, अब टमाटर का मास 2 kg है इज इनफ। आप ये थोड़ी बोलेंगे भाई ईस्ट डायरेक्शन में मास जो है 2 kg है बट वेस्ट डायरेक्शन में 3 kg है, नो, हम ऐसा नहीं बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम सिर्फ मास की बात कर रहे हैं कि मास 2 kg है, दैट मीन्स इट्स इनफ इंफॉर्मेशन अबाउट द मास, ठीक है। तो इट इज गुड। जैसे टाइम भी बहुत बढ़िया है, टाइम के पास कोई डायरेक्शन नहीं है, आप ऐसा थोड़ी बोलते ईस्ट में तो 3 बज रहे हैं लेकिन वेस्ट में 5 बज रहे हैं, नहीं होता ऐसा, राइट। टाइम इज सेम फॉर एवरीवन, राइट। एंड जब हम टाइम को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, लेट्स से यू आर सेइंग कि मैं तो 5 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो यू विल से लाइक 5 hours एंड समझने वाला बिल्कुल समझ जाएगा कि भाई दिस डज नॉट नीड एनी डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। आप 5 hours से पढ़ रहे हैं, उसको दिमाग में समझ में आ गया कि भैया 5 घंटे से पढ़ रहे हैं, दैट्स इट, और कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं चाहिए एक्स्ट्रा समझाने के लिए, ठीक है। तो दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वो किस में चला जाएगा, स्केलर में चला जाएगा। तो ऐसी क्वांटिटी जिनको बताने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड ही काफी है, मैग्नीट्यूड मतलब नंबर और यूनिट, सिर्फ इतना ही काफी है, तो उसको हम बोल देते हैं स्केलर और स्केलर्स की कैटेगरी में डाल देते हैं, ठीक है। वेक्टर के केस में हम लोग क्या करते हैं, जानबूझ के डायरेक्शंस को इन्वॉल्व करते हैं ताकि हम उस चीज को अच्छे से समझा सके। जैसे लेट्स से आप लोग खेल रहे थे और खेलते खेलते किसी को धक्का लग गया, अब वो बोलेगा मुझे धक्का मारा है, ठीक है। अब कैसे पता करें किसने धक्का मारा है, कैसे पता करोगे, तो हम देखेंगे कि भाई जिस डायरेक्शन में उसको धक्का लगा उसके पीछे अपोजिट डायरेक्शन में कौन था, तभी तो हम बताएंगे कि भाई इसने तो इसको उस तरफ धक्का मारा। लेट्स से आपने क्या किया, आपने अपने फ्रेंड को ईस्ट में धक्का मारा, राइट, तो वो ईस्ट में गिरेगा, सही बात है कि नहीं बात है, ईस्ट में ही जाके गिरेगा। द थिंग इज कि यहाँ पे डायरेक्शन मैटर करती है। आपने धक्का मारा तो आपने कुछ मैग्नीट्यूड तो किया, लेट्स से आपने 5 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, लेट्स से 6 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, बट डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट टू डिस्क्राइब इट कि आपने कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगाया है, वो कहाँ गिरा है, व्हाट इज द रिजल्ट। इसको समझाने के लिए, पूरा समझाने के लिए यू शुड
डिवोट अ डायरेक्शन टू दैट नंबर, इसी वजह से हमने उसको बोल दिया है कि वो वेक्टर क्वांटिटी में चला गया है। जब किसी भी ऑब्जेक्ट के पास, जब किसी भी लेट्स से क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड हो, यूनिट हो, साथ ही साथ डायरेक्शन भी हो, तब हम उसे बोल देंगे कि भाई दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं एसेलरेशन। एसेलरेशन का मतलब क्यों भाई, उसमें डायरेक्शन कहाँ होती है, आप गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, और आपने क्या किया, एसेलरेटर दबाया। जैसे ही आपने एसेलरेटर दबाया, गाड़ी और स्पीड से तेज होगा। एसेलरेशन का मतलब तो यही होता है इंक्रीजिंग द स्पीड, तो वो और तेज से मूव करेगी, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगी, जिस डायरेक्शन में वो चल रही थी उसी डायरेक्शन में तो आगे मूव करेगी, राइट। तो उसके पास डायरेक्शन इन्वॉल्व हुआ ना, आपने एक्सेलरेटर मूव किया और मतलब तेज किया, राइट, एंड इट गोज विद द वेरी फास्ट स्पीड इन द सेम डायरेक्शन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग। ठीक है, और अगर आपने ब्रेक मारा तभी भी आप एक्सेलरेशन दे रहे हैं, बट दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में दे रहे हैं, तभी तो गाड़ी आगे जाके रुक गई, उसका स्पीड डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्शन मैटर करता है। एक्सेलरेशन दबाया लेकिन कौन सी में, ब्रेक दबाया, ठीक है, तो उसे समझ में आ जाएगा एक्सेलरेशन नेगेटिव में चला गया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके हम लोग डिसाइड करते हैं दैट अ क्वांटिटी को के पास उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उस क्वांटिटी को पूरा डिस्क्राइब करने के लिए हमको डायरेक्शन की जरूरत है या सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चलना जाएगा। हम जब डायरेक्शन इन्वॉल्व कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है, वेक्टर बन जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी वेक्टर्स एंड स्केलर, दैट मीन्स डायरेक्शंस एंड नो डायरेक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इसका अच्छा एग्जांपल है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सब के सब इन्वॉल्व करते हैं डायरेक्शन को, एंड दैट्स व्हाई दे आर इन दी वेक्टर कैटेगरी, राइट। अब हम आपको बताते हैं नेक्स्ट कुछ चीजें स्केलर क्वांटिटी के बारे में, जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। इसका नंबर 1 पॉइंट आपको पता होना चाहिए दैट जो स्केलर क्वांटिटीज होते हैं वो क्वांटिटीज को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब कौन इतना बड़ा बड़ा स्केलर क्वांटिटीज बोलता रहेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, उनको बोल देते हैं स्केलर्स। ठीक है, तो अब इतना बड़ा बड़ा बोलने से कोई फायदा तो है नहीं, तो हम उनको सिर्फ स्केलर्स बोल देते हैं। स्केलर क्वांटिटी बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, तो लेट्स से इनका दूसरा नाम क्या है, स्केलर्स है। ठीक है, सेकंड हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई जो स्केलर्स होते हैं उनके पास मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, स्केलर्स हैव मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है ये तो सभी को पता होगा कि नहीं पता है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, 2 kg। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड होता है। देखो नंबर और यूनिट, जब नंबर और यूनिट एक साथ आ जाए तो इसको ही हम मैग्नीट्यूड बोल देते हैं। ठीक है, जैसे 5R, तो ये एक डेफिनेटली क्या हो गया है, एक स्केलर हो गया है। ठीक है, लेट्स से 15 किलोमीटर। सो ये क्या है, ये सबके सब स्केलर्स हैं। ठीक है, तीसरा हम ये बोल सकते हैं कि जो स्केलर्स होते हैं वो बहुत ही इजीली ऐड हो सकते हैं। ठीक है, सबट्रैक्ट हो सकते हैं, मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं, एंड डिवाइड भी हो सकते हैं। बाय यूजिंग अलजेब्रा। जो हम बचपन से प्लस माइनस सीखते आए ना कि भाई 2 + 2 4 होता है, 5 + 7 12 होता है, तो ये जो नॉर्मल से बचपन से प्लस माइनस हम लोग सीखते आए हैं इतना सारा, उसी को यूज करके हम इजीली स्केलर्स को ऐड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स से आपने एक बैग लिया, उसमें बहुत सारी चीजें हैं और उस बैग में से आपने बहुत सारी चीजें मतलब बहुत सारी सब्जियां हैं लेट्स से। ठीक है, उसमें 2 किलो टमाटर हैं, 2 किलो भिंडी हैं, कुछ भी जैसे बहुत सारा, तो उसमें से अगर आप 1 kg ऑफ कोई भी सब्जी निकाल लें तो आप सबट्रैक्ट करके उसका टोटल वेट कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। उसमें माइनस कर सकते हो सिंपली। तो हम क्या कर सकते हैं, स्केलर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, राइट, सबट्रैक्ट कर सकते हैं बाय सिंपल यूजिंग अलजेब्रा, जैसे जो कि नॉर्मली हम पढ़ते आए हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा वेक्टर्स के केस में नहीं है। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं भाई कि आपने खरीदा है मार्केट से 1 kg पोटैटो। ठीक है, आपने पोटैटोज खरीद लिए, फिर आपने 1 kg टोमेटो भी खरीद लिए लेट्स से।
उसके बाद जब आपने इनको देखा कि भाई 1 kg पोटैटो खरीद लिए, 1 kg टोमेटो खरीद लिए और आपका बैग हो गया हैवी, तो आपने बोला कि भाई जो टोटल मास है वो कैसे कैलकुलेट करा, डायरेक्ट उनको ऐड कर दिया 1 kg प्लस 1 kg, तो हमको क्या मिल गया 2 kg, राइट। तो ये जो 2 kg हमको मिला, हमको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी क्या, सिंपली ऐड कर दिया, दैट्स इट। इसी तरह हम लोग सारे स्केलर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड इजीली कर सकते हैं, जैसा कि हम करते आए हैं, ठीक है। चलिए अब आप तुम फटाफट से इसको नोट कर लो, फिर हम फटाफट से वेक्टर क्वांटिटीज को स्टडी करते हैं। चलो अब हम वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में फटाफट से देख लेते हैं। वेक्टर्स का दूसरा नाम, अब तो मैंने बोल ही दिया, वेक्टर क्वांटिटीज का दूसरा नाम वेक्टर्स ही होता है, ठीक है। इसको हम लिखेंगे दैट वेक्टर क्वांटिटीज आर ऑल्सो नोन एज वेक्टर्स, ठीक है। उनको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर्स बोलते हैं, सिंपली वेक्टर्स बोलते हैं। अब उनके पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं होती हैं, उसके लिए हम बोलेंगे कि भाई दे हैव मैग्नीट्यूड, यस दे हैव मैग्नीट्यूड, ठीक है, एज वेल एज डायरेक्शन। उनके पास डायरेक्शन, डायरेक्शन इज द इम्पोर्टेंट, डायरेक्शन नहीं है तो उस वेक्टर की क्लासेस को बाहर ही निकाल देंगे हम लोग, एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं कि भाई 2 न्यूटन ईस्ट, इसका मतलब फोर्स लगाया गया है ईस्ट डायरेक्शन में 2 न्यूटन का, द प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट अ फोर्स, सो दिस इज हाउ वी डू इट, राइट। नंबर 3 जो हम लोग लिखना चाहेंगे, दैट वेक्टर्स कैन बी एडेड subtracted and multiplied by using vector algebra। देखेंगे ये जो वेक्टर अलजेब्रा होता है, अब ये जो वेक्टर्स होते हैं ना, इन लोगों ने बगावत कर दी थी कि हम लोग तो स्केलर्स के तरह प्लस माइनस नहीं होंगे, हमको अपना डिफरेंट चाहिए, हम अलग तरीके से ऐड होंगे, हम अलग तरीके से सब्ट्रैक्ट होंगे, क्योंकि हमारे पास डायरेक्शन है, इसलिए हमको एक अलग अलजेब्रा चाहिए। तो इसी के कारण वेक्टर्स को भी एक अलग अलजेब्रा माना गया, ठीक है, उनके लिए अलग अलजेब्रा बनाया गया ताकि वो अलग तरीके से ऐड हो सके, अलग तरीके से सब्ट्रैक्ट हो सके, अलग तरीके से मल्टीप्लाई हो सके, क्योंकि उनके पास डायरेक्शन है, ठीक है। तो इसके चक्कर में एक नया अलजेब्रा बनाया गया, उनको बिल्कुल शांत करवाया गया, उनको नया अलजेब्रा दिया गया और उसका नाम इन्होंने रख दिया है वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। इसके अंदर अगर आप 1 + 2 करोगे ना तो वो 3 नहीं होगा, उसके साथ कुछ डिफरेंट डायरेक्शन भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको सिंपली इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन एक और चीज आपने यहाँ पे ध्यान दी, वो ये कि 2 वेक्टर्स आपस में डिवाइड नहीं हो सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई डायरेक्शन को तुम डायरेक्शन से कैसे डिवाइड करोगे, तुम मुझे ये बताओ। इसी वजह से यहाँ पे डिवीजन का कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो आप ये चीज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट देख सकते हो कि जो 2 वेक्टर्स हैं, लेट्स से 2 वेक्टर्स cannot be divided by each other, एक दूसरे से डिवाइड नहीं हो सकते, बिल्कुल। डिवीजन इज नॉट पॉसिबल इन वेक्टर्स, वेक्टर के अलजेब्रा में, मींस दिस वेक्टर अलजेब्रा में डिवीजन इज नॉट पॉसिबल। तो डिवीजन का तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बस 3 चीजें होती है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, दैट्स इट, ठीक है। तो दैट्स हाउ वी डू व्हाट वी डील विद दी वेक्टर्स, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताती हूँ कि अब हमको जो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन करना है, जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। एंड आई वुड रिकमेंड कि आप लोग होमवर्क में पहले मैं आपको होमवर्क दे देती हूँ, राइट। सो
योर होमवर्क विल बी, यहाँ लिख देती हूँ मैं, ठीक है। आपका जो होमवर्क होगा वो उसके अंदर आपको करना है चेक पॉइंट, जो क्वेश्चंस हैं चेक पॉइंट के ए के, ठीक है, वो करने हैं 1 2 3। ये आपका होमवर्क है आज का, ठीक है। सो डू इट एंड सबमिट ऑन गूगल क्लासरूम्स, ओके। एंड नेक्स्ट हमने डेफिनेटली ये सारी चीज़ें जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने प्रिपेयर की थी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट। कोई भी कमेंट हो तो डेफिनेटली, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं इन दी कमेंट बॉक्स, राइट। एंड डेफिनेटली आपको क्या करना है, आपको रिवाइज करना है, आपको अगेन एंड अगेन कंसेप्ट को क्लियर करना है, उनको स्ट्रॉन्ग बनाना है। जितना भी मैं होमवर्क दूँ वो सारा होमवर्क कंप्लीट करना है और गूगल क्लासरूम्स पे सबमिट करना है। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।